First of all, thank you so much, sir, for such a kind intro. And I'm really, really grateful and honored to be a part of this wonderful activity. ये जो topic है, ambiguous genitalia, ये topic क्यों मैंने select किया? Because it's a very sensitive topic, and you know, जब कोई topic बहुत sensitive होता है, लोग उसके बारे में बात करते हुए डरते हैं. They don't want to talk about it, and as a result, a number of myths start creating. और उस myths का effect patient के ऊपर होता है, उसकी misery बढ़ती है. I feel this could be a first step toward breaking this myth, and let's talk about it कि atypical genitalia है क्या? There is nothing to declare, and I can confirm that all the pictures that I'm showing in my presentation, they are shown after taking a proper consent. I can request you all कि please कोई genitalia की picture हो तो उसकी picture मत लीजिएगा. थोड़ी confidentiality का issue होता है. So let's start with this. ये कुछ pictures हैं. ये बच्चे मेरे पास आए थे first time clinic के अंदर. अगर आपसे मैं पूछूं A, B और C, जब आपके पास अगर clinic के ऊपर ऐसा कोई baby, कोई parents लेकर आते हैं, तो आपकी क्या thoughts होती हैं? Anyone? और माँ बाप का पहला सवाल ये होता है, डॉक्टर साहब ये जगह है, बताइए ये लड़का है कि लड़की? कोई भी इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहे? I think this silence is actually मेरा भी यही response होता है. Exactly same. I cannot comment. So I really feel that I wish at the end of this presentation, if we can understand why it is important to learn about atypical genitalia, if I can deliver that which baby you need to refer to pediatric endocrinologist, किसको आप कहोगे कि इसको वर्कअप का ज़रूरत है, इसको नहीं है. अगर हमें ये कुछ definitions को differentiate कर सकें कि atypical genitalia, DST और ट्रांसजेंडर, इनमें क्या डिफरेंस है, इसके कॉजेस और रफ सी डायग्नोस्टिक अप्रोच. Why it is important? I think I'm also a mother, and being a female, I can relate कि प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है which is full of excitement for a mother. She's really excited about outcome in the form of a normal baby boy or baby girl, but when a baby with atypical genitalia is delivered, this whole scenario of excitement turned into depression, anxiety, and uncertainty. Being a parents, कभी सोचिएगा उनके दिमाग में क्या सवाल आते होंगे? डॉक्टर साहब ये लड़का है कि लड़की? मैं इसका नाम क्या रखूं? मेरा बच्चा सेहतमंद तो है, कहीं ये ट्रांसजेंडर तो नहीं? मुझे अपनी फैमिली को क्या बताना चाहिए? क्या ये मेरी वजह से है? और मुझे किसको दिखाना चाहिए? मेरा ख्याल है बीइंग अ मदर इवन आई कैन रिलेट कि अगर कोई ऐसा हो तो ये सवाल मेरे दिमाग में ज़रूर आएंगे. उस टाइम के ऊपर बीइंग अ फिजिशियन, बीइंग अ जीपी, बीइंग अ डॉक्टर, आप लोगों को क्या करना चाहिए? यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड एम्पैथिक. ये ऑनेस्ट का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली ईंट हम लोगों ने, जीपीज़ ने, या पहली ईंट पीडियाट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट ने रखनी होती है. और जब पहली ईंट गलत रखी जाती है, यकीन कीजिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन बच्चों को मैनेज करने के लिए. उस टाइम पे आप बहुत ऑनेस्टली उनको बताइए कि मुझे भी अभी नहीं पता इट्स अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल, बट व्हाट आई कैन एश्योर यू, योर बेबी इज हैविंग अ मेडिकल कंडीशन बिकॉज ऑफ विच दिस जेनेटेलिया इज एबनॉर्मल. Your baby needs certain chunk of investigations, and after that I will be in a better position to let you know where the problem lies. I can assure you कि मैं आपकी confidentiality को maintain करूँगा. I can assure you this baby is not transgender, and I will refer you to pediatric endocrinologist or pediatric surgeon or whatever you feel you are comfortable with. What are the consequences? क्यों इतना important है कि जब एक बच्चा पैदा होता है atypical genitalia का, उसको फौरी तौर पे रेफर किया जाए? Why it is important? Because बहुत सारी लिस्ट है जब किसी बच्चे के यूरिन की जगह नॉर्मल नहीं होती, उसमें एक कॉज है congenital adrenal hyperplasia. These children can die within weeks. I think I'm not sharing a good news. हमारे पास 50% बच्चे जो CH के आ रहे हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है, 4 बच्चों की डेथ, 5 की डेथ, 2 की डेथ, एंड दे नो वो बच्चों की भी जेनेटेलिया नॉर्मल नहीं था, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं से फॉल्स रीअश्योरेंस मिल गई थी कि कुछ नहीं होता, बड़ा होके जाके दिखाइएगा. सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड, CH के बच्चे आपके विद इन वीक्स, विद इन मंथ्स, दे कैन लीड टू देयर डेथ एंड एक्सपायरी अगर उनका प्रॉपर वर्कअप ना किया जाए. सेकेंडली डेफिनेटली कुछ नॉन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी हैं जो कि एबनॉर्मल जेनेटेलिया के साथ आ सकती हैं.
और अगर उनको भी टाइमली पिक ना किया जाए, वो हमारे पास जो लेट बच्चे 15 साल के आ रहे हैं, 18 साल के आ रहे हैं, रोते हैं हमारे पास आके, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बुरी है। मैं कुछ एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ। दिस वॉज अ गर्ल हु प्रेजेंटेड टू मी एट द एज ऑफ 13 ईयर। 13 साल की बेटी को माँ बाप लेकर आते हैं, डॉक्टर साहब एकदम जगह चेंज होना शुरू हो गई है। जब पैदा हुई थी हमें किसी ने बताया था कोई मसला है, ठीक है, हम वर्कअप करते हैं, इट्स अ नॉर्मल बॉय, 46XY, 5 अल्फा रिडक्टेज, एंड जस्ट इमेजिन दिस इज अ रिप्रोडक्टिव फर्टाइल, हर लिहाज से एक नॉर्मल बच्चा था। 13 ईयर ऑफ लाइफ दैट बॉय लिव्ड एज अ गर्ल। सेकेंडली, ये एक बच्चा मेरे पास आता है 12 साल का, कि मेरे बच्चे की बायलैटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस थी। मुझे कहा गया वेट कीजिए, आराम से जाके दिखाइएगा। अब मैं आपके पास लेकर आया हूँ और जब एग्जामिन करते हैं, वर्कअप करते हैं, ही टर्न्ड आउट टू बी XX, एक्चुअली अ नॉर्मल फीमेल। वो इतनी बच्ची ओवर विरलाइज थी कि जेनेटेलिया मेल लाइक लग रहा था। अगेन जस्ट लुक एट दैट कि उस लड़की ने 12 साल एज अ फीमेल मेल गुजारे, जो कि एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फीमेल थी। एंड दिस बोथ कंडीशंस आर बिकॉज ऑफ अ मेडिकल रीजन, देयर इज नो शेम इन इट। सो पहली चीज़ जो मैं आई रियली विश कि मैं अगर डिलीवर कर सकूं कि किस पेशेंट को आपने रेफ़र करना है। देखिए, छोटे सिंपल एक हाइपोस्पीडियसिस के साथ भी बच्चे आपके पास आएंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि इस बच्चे को मुझे रेफ़र करना है, इसको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो जेनेटेलिया ऐसा होता है देखते ही पता चल जाता है, नहीं भाई कोई गड़बड़ है, नहीं समझ आ रहा लड़का है कि लड़की, रेफर इट। इफ़ यू हैव अ डाउट, रेफर इट। प्रॉब्लम कहाँ आती है? बिल्कुल नॉर्मल लड़कों की तरह का जेनेटेलिया है, मगर उनमें से कोई भी एक ये चीज़ आ जाए। इफ़ यू हैव अ नॉर्मल मेल लाइक जेनेटेलिया बट बायलैटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस, प्लीज रेफर टू पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, बिकॉज यू नेवर नो फीमेल हो और इतनी विरलाइज हो चुकी हो कि जेनेटेलिया मेल की तरह नजर आ रहा है। सेकेंडली, अगर किसी बच्चे को सिवियर हाइपोस्पीडियसिस है, हाइपोस्पीडियसिस मीन कि यूरिन की ओपनिंग नीचे आ गई है, वो आपकी स्क्रॉटल या पेरिनियल एरिया के ऊपर है, तो एज पर इंटरनेशनल गाइडलाइन दिस इज एटिपिकल जेनेटेलिया। थर्ड इज, अगर किसी भी लेवल की आपके पास हाइपोस्पीडियसिस के साथ कोई एक और एम्बिग्विटी आ जाए, एक टेस्टिस पैल्पेट हो रही है, एक नहीं हो रही, फेलस का साइज बहुत छोटा लग रहा है मुझे, स्क्रॉटम ठीक नहीं बना हुआ, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है उस लड़के में, हार्मोन ठीक नहीं बन पा रहे, रेफर टू पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। इसको अगर मैं सिंपल बात में कहूँ, अगर सिंपल आपके पास प्रॉक्सिमल हाइपोस्पीडियसिस आ जाए कि ओपनिंग ग्लैंड्स के ऊपर है या शैफ्ट के ऊपर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आप डायरेक्टली यूरोलॉजिस्ट को रेफर कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रॉब्लम दूसरी कहाँ आती है? एक नॉर्मल फीमेल लाइक जेनेटेलिया है, अगर उसके साथ क्लाइटोरोमेगली आ जाए, पेरेंट्स करते हैं कंप्लेन, कई दफ़ा इंटरेस्टिंगली माँ बाप को थोड़ी झिझक होती है, वो आके आपको क्या बताएंगे, डॉक्टर साहब बच्ची खारिश करती है नीचे पानी, वो ये नहीं बताएंगे कि मेरा कंसर्न ये है कि जेनेटेलिया बड़ा है, वो डर रहे होते हैं कि डॉक्टर खुद पिक करे। आपकी जब भी कोई फिजिशियन या कोई पेरेंट्स आपके पास आके ऐसी कोई कंप्लेन करे और आपको वो डिस्चार्ज नहीं लग रहा, जेनेटेलिया को देख लें, मे बी वो चाह रहे हो कि डॉक्टर साहब का खुद ही ध्यान इस पे पड़ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मदर के साथ एक फुफ्फो भी होती हैं, एक दादी भी होती हैं, खाला भी होती हैं, दे डोंट वांट टू लाइक ओपन अप, ठीक है। दूसरा कंडीशन, कभी भी कोई पेरेंट्स बच्ची के जेनेटेलिया का या कंसर्न करें, प्लीज़ फोल्ड्स को पैल्पेट कर लें। आई कैन शो यू अ लिस्ट कि लास्ट 2 ईयर्स में जब से मैं यूके से बाहर आई हूँ, वापस आई हूँ, तो मेरे पास जितने बच्चे लड़कियाँ टेस्टिस के साथ आई, उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन ये थी, डॉक्टर साहब खारिश करती है नीचे बहुत ज़्यादा। और जब मैंने एग्जामिन किया, उनके अटेंडेंट को बाहर भेजा, बाद में माँ से पूछा आपको फील नहीं हुई थी नीचे स्वेलिंग हो रही है? जैसे जी मुझे पता था, लेकिन मैं था कि आप खुद इसको देख लें, मैं कहना नहीं चाह रही थी। सो डो नॉट वेट फॉर देम, ऐसा कोई कंसर्न आए आप पैल्पेट ज़रूर करें, वहाँ पे टेस्टिस तो नहीं पैल्पेट हो रही। लास्ट, आई एम जस्ट स्किपिंग दिस बिकॉज इट्स मोर एक्सपेरिमेंटल। लर्निंग पॉइंट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये पहली पिक्चर देख के लगता था कि लड़का है, सेकंड पिक्चर देख के लगता था कि लड़की है, जबकि बिल्कुल ऑपोजिट है। डू नॉट मेक assumptions ऑफ अ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड बाय जस्ट लुकिंग एट जेनेटेलिया, बिकॉज वो जो आपकी पहली ईंट बैठ जाती है, माँ बाप उसको पकड़ लेते हैं, वो नहीं आते दिखाने, हमारे पास तब आते हैं जब कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तब तक चीज़ें बहुत लेट हो जाती हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आई नो दिस इज़ वेरी मेडिकल, बट आई रियली फील बीइंग अ फिजिशियंस यू ऑल नीड टू नो। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, बच्चा XX है कि XY? गोनेडल सेक्स क्या होता है,
बच्चे के अंदर ओवरीज हैं कि टेस्टीज। फिनोटिपिक सेक्स क्या होता है कि बच्चे का जेनेटेलिया कैसा है, लड़के की तरह, लड़की की तरह या इंटरमीडिएट। एटिपिकल जेनेटेलिया एंड डीएसटी, ये बड़ी डिबेट है, इनमें क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है, ठीक है। सो डीएसटी इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, एक ये बहुत बड़ी अम्ब्रेला है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर विद congenital condition in which you have a abnormality in either 6 chromosome, gonads or genitalia, ठीक है। चाहे उस बच्चे का सेक्स क्रोमोसोम ठीक नहीं बना, गोनाड ठीक नहीं बना या जेनेटेलिया, इस बड़ी टर्म को हम कहते हैं डीएसटी। एटिपिकल जेनेटेलिया इज वन ऑफ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। ये ऐसे ही है कि डीएसटी का मतलब है इन्फेक्शन, बुखार एक अलामत है उसकी। सो एटिपिकल जेनेटेलिया इज अ सिम्टम। Then you need to find out what is the reason for atypical genitalia. जितनी DST हैं, ज़रूरी नहीं कि हर DST atypical के साथ प्रेजेंट करे, मोस्टली प्रेजेंट करती हैं, ठीक। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज इट्स वेरी मच स्पेसिफिक, बट जस्ट टू शो यू there are number of DSTs which can present without atypical genitalia. For example, Turner syndrome, आपने बहुत कॉमन सुना होगा, Klinefelter सुना होगा. It is a DST now, but they do not present with mostly like atypical genitalia. This is a very important slide, a very important message. I can say that the whole key of this presentation. क्या DST और transgender same है? So, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि DST एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर कंजेनिटल रीजन है सेक्स क्रोमोसोम गोनाड और एक्सटर्नल जेनेटिलिया के सही ना बनने का. जबकि व्हाट इज अ ट्रांसजेंडर? प्लीज, ट्रांसजेंडर इज अ साइकोलॉजिकल सिचुएशन where a normal male or a normal female feel that the gender assigned to them is actually not appropriate for him. Simple अल्फाज में एक XY लड़का जिसके अंदर टेस्टिस भी हैं, वो एक नॉर्मल मेल है, जेनेटेलिया भी नॉर्मल है, पर उसको लगता है कि मैं फीमेल हूँ. अ नॉर्मल फीमेल XX है, रिप्रोडक्टिव हर लिहाज से उसको लगता है मैं मेल हूँ. आई एम नॉट अ इस्लामिक स्कॉलर, तो मैं यहाँ पे कोई कमेंट नहीं दूंगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसके ऊपर बहुत काम हो चुका है मलेशिया में और इराक में. DST की सर्जरी हमारे रिलीजन में अलाउड है. हाँ, ट्रांसजेंडर की ममानत है. दैट इज़ माई लिटिल नॉलेज. ठीक है, तो ट्रांसजेंडर आई कैन नॉट कमेंट, बट DST इज़ डेफिनेटली अलाउड. तो उसको मिक्स मत करें ट्रांसजेंडर के साथ. आई नो एक ट्रांसजेंडर का बिल आया हुआ है, बहुत इश्यूज पड़े हुए हैं. उसका इशू ही है कि पहली लाइन ही गलत है. DST और ट्रांसजेंडर को इकट्ठा रख दिया गया. ये दो डिफरेंट कंडीशंस हैं. आई एम जस्ट स्किपिंग इट बिकॉज आई जस्ट हैव 5 minutes. सो फाइन. एक नॉर्मल जेनेटेलिया को बनने के लिए लड़के को, फीटस को, माँ के पेट में जो बच्चा होता है, टाइमली एक्सपोजर ऑफ एंड्रोजन चाहिए होता है, और फीमेल को एंड्रोजन का एक्सपोजर नहीं चाहिए होता. ये बात याद रख लें. लड़के का जेनेटेलिया तभी बनेगा अगर उसको टेस्टोस्टेरोन मिलेगा माँ के पेट में, और बेटी का जेनेटेलिया फीमेल तभी रहेगा अगर उसको मेल हार्मोन नहीं मिलेगा. सो एटिपिकल जेनेटेलिया तभी होगा अगर मेल के अंदर किसी वजह से मेल हार्मोन नहीं बन पा रहा या फीमेल के अंदर ज़्यादा बन पा रहा है. आई एम जस्ट गोइंग टू लुक टुवर्ड द कॉजेस. एक फीमेल के अंदर मेल हार्मोन की एक्सेस कहाँ से हो सकती है? माँ से आ सकती है. मदर को ट्यूमर तो नहीं कोई रियलाइजिंग, कोई CH की हिस्ट्री तो नहीं है, मदर रियलाइज तो नहीं हुई प्रेगनेंसी के दौरान. प्लेसेंटा से आ सकती है, और फीटस खुद ज़्यादा मेल हार्मोन बना सकता है. फीटस कहाँ से बना सकता है? एड्रिनल ग्लैंड और गोनाड्स. सो मेल के अंदर कब एटिपिकल जेनेटेलिया होगा? अगर उसके अंदर मेल हार्मोन कम बन रहा है. इट कुड बी हाइपोपिट्यूटरिज्म, इट कुड बी टाइप ऑफ CA जिसमें उसका मेल हार्मोन ज़्यादा ना बन पा रहा हो, बच्चे की टेस्टिस ठीक काम नहीं कर रही हैं, और बच्चे का मेल हार्मोन सही तरीके से आगे इफेक्टिव तौर पे काम नहीं कर पा रहा. आई एम जस्ट स्किपिंग द स्लाइड बिकॉज ओनली 3 to 4 minutes आर लेफ्ट. अगेन एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट. ये जितने कॉजेज हैं ना एटिपिकल जेनेटेलिया के, इन सब में से प्लीज़ एक कॉज CAH को रूल आउट ज़रूर कर लिया करें. बाकी सब वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने ये मिस कर दिया, इट विल एंड अप इन एक्सपायरी ऑफ द स्किड. क्विक वर्कअप. आपके पास कभी कोई बच्चा आ जाए इस कंप्लेन के साथ, फौरी तौर पे पूछें, बच्चा फेलियर टू थ्राइव तो नहीं हो रहा, उल्टियाँ तो नहीं करता, वॉमिटिंग तो नहीं आ रही, बच्चे का रंग तो नहीं काला हो रहा. ये वार्निंग साइंस हैं. इनमें से कोई भी साइन है, फॉरन इमरजेंसी भिजवा दें. कंसेंगुइनिटी का पूछें, उनसे पूछें कि माँ ने कोई हमल के दौरान मेडिसिन तो नहीं ली थी, और फैमिली हिस्ट्री को पूछें. बच्चा सिक लुकिंग तो नहीं है, वेल लुकिंग है, हाइड्रेशन स्टेटस कैसा है, पिगमेंटेशन तो नहीं हुई हुई, ऐसा कोई फीचर है, फॉरन इमरजेंसी भिजवा दें.
फिर उसका हार्ट रेट, बीपी ज़रूर लीजिए। एग्जामिनेशन ऑफ जेनेटिलिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी फेलस की लेंथ कैसी है, फोल्ड कैसे हैं, गोनैड्स कहाँ पड़े हैं, कितनी ओपनिंग है, ये हम स्कोरिंग यूज़ करते हैं बीइंग अ पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। फीमेल के अंदर अगर वो ओवर रियलाइज हो, और लड़कों के अंदर ये यूज़ की जाती हैं अगर वो अंडर रियलाइज हो। एक बेसिक टेस्ट, अगर आपको आपका बच्चा सिक लग रहा है ना, एटलीस्ट सोडियम, पोटाशियम और शुगर तो मस्ट करवा लें। ABGs अगर आपके पास फैसिलिटी है, और ECG। हार्मोनल प्रोफाइल हमारे पास पाकिस्तान में सिर्फ 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन और कॉर्टिसोल अवेलेबल है, लेकिन ये करवाना पैदा होते ही नहीं करवाना, जब बच्चा 3 दिन से बड़ा हो जाए। सेकेंड मिस्टेक ये होती है कि आप फर्स्ट डे पे करवा लें, ये मत कीजिएगा। फिर कुछ स्पेसिफिक एंडोक्राइन टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड मस्ट करवा लीजिए, कीरोटाइप के लिए भेज दें। So last 2 slides, management. Management of atypical genitalia is multidisciplinary. Pediatric endocrinologist, pediatric surgeon, urologist, geneticist and psychiatrist, ये सब मिल के इसका इलाज करते हैं। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल कि कोई एक बंदा इसका ट्रीटमेंट करे। हर केस को हम 5 स्टेप्स पे देखते हैं। इसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, उसके बाद इसका जेंडर असाइन क्या करना है, जेंडर असाइन करने के बाद सर्जरी का फैसला होता है। देखिए, सर्जरी इरिवर्सिबल है। अगर आप फैसला करेंगे कि इसको लड़का बनाना है तो फिर लड़कों वाली सर्जरी कराएं, पहले डिसीजन कर लें। फिर आपने ये देखना है कि इस बच्चे को प्यूबर्टी पे सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, और फर्टिलिटी के टाइम पे सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। जस्ट अ रूल ऑफ थंब, मेडिकल थेरेपी हमें मोस्टली CH के अंदर चाहिए होती है, हाइड्रोकॉर्सन फ्लोइनफ, बाकी किसी में नहीं चाहिए होती। जेंडर असाइनमेंट पूरी टीम डिसाइड करती है, बट एज अ रूल ऑफ थंब CH को हम पूरी कोशिश करते हैं कि XX को लड़की ही बनाएं, XY को मेल बनाएं। बाकी जितनी कॉजेज हैं उस पर बहुत डिबेट हो सकती है, वो हर केस का इंडिविजुअलाइज है। सर्जरी मैंने आपको पहले बता दिया, डिपेंड करता है आपकी टीम ने डिसीजन क्या लिया। सो अ टेक होम मैसेज, atypical genitalia is a medical condition, it is not a stigma. It should be promptly investigated to rule out life-threatening condition like CAH. Early referral and investigation is needed for identification of underlying cause and assignment of proper gender. Thank you so much, and if you have any questions. आखिर